تو ایڈکامز انجینئرنگ اینڈ ڈیولپرز کے جو سی ای او ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد یاسین یوسف زئی صاحب. السلام علیکم. بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ Thank you for having me on your show. بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو، پلیز ہیو اے سیٹ. Thank you. سب سے پہلے تو ہمارے شو پہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹاپک کے حوالے سے پہلا سوال کریں، پھر آپ کی فیلڈ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. واٹ ڈو یو تھنک، بہت سارے لوگ واز کسی اور چیز کا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا اپنا کردار بالکل مختلف ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کافی بیسکلی ہمارے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں تو ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس وہی بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ وہ ریٹس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن ونس اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا فیلڈ، ونس یو اسٹارٹ ایگزیکیوٹنگ دیئر ورک، دین یو گیٹ ٹو نو دیم پراپرلی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے ایٹ انیشیل اسٹیج ونس دے ور ڈیسائڈنگ دا ریٹس، اینڈ ناؤ ونس وی آر ڈوئنگ دیئر جاب تو کیا ہے. تب وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوتے ہوں گے. وہ پرابلمس بھی کافی آتے ہیں اس طرح کے، ان کی ریکوائرمنٹس اگر وہ ہمیں فارورڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں اگر ٹھیک لگتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو ڈیسائیڈڈ ریٹس ہیں، آپ نے جو اسکوپ ایگری کیا ہوا ہے اس میں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ریٹس ریوائز کریں. یس وی ول ڈو اٹ. بٹ what happens in field is کہ جی آپ کے ساتھ وہ پہلے ڈسکشن کچھ اور ہوتی ہے، لیٹر ورڈز ان کی جو وش لسٹ ہے، ڈیمانڈز ہیں، وہ بڑھتی جاتی ہیں. تو اگر لوگ، وہی بات ہے ہمارا ایک ہے کہ جی کم ریٹ میں معیاری کام ہو جائے، بالکل، تو بیسڈ آن دا ریکوائرمنٹس وہی بات ہے کہ وی گیٹ ان ٹو ڈسکشن ود دیم، وہ پھر اگری کر جاتے ہیں اور وی ایگزیکیوٹ دیئر ورک آن گراؤنڈ. سر مجھے بتائیں کہ آپ کی جو فرم ہے وہ گھروں کے علاوہ کیا پلازاز یا اس طرح کی چیزوں میں بھی انوالو ہے، اور کیا کیا چیزیں آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ میم آپ کو تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتاؤں، آئی ایم بیسکلی اے اسٹرکچرل انجینئر. ٹھیک ہے. تو بیسکلی میرا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آئی یوز ٹو ورک فار فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن آن روڈ پروجیکٹ، اینڈ واٹ ہیپنڈ از کہ بیک ان 2010 دیر واز اے فلڈ. جی. اور فلڈ کی وجہ سے ہوا یہ کہ 37 kilometers آف آور روڈ گاٹ واشڈ آؤٹ بیکاز آف فلڈس. بالکل. اینڈ دا بلیم واز پٹ آن ٹو دا کانٹریکٹر کہ یار یو آر ریسپانسبل. اچھا. ابھی ریئلٹی کی بات یہ تھی کہ جو روڈ کا فیلئر ہوا تھا دیٹ واز بیکاز آف دا ڈیزائنر. ٹھیک ہے، دا اسٹرکچرل انجینئر. ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ جی آپ فیلڈ میں اس طرح کا کام کریں کہ آپ کچھ ڈیزائن کر سکیں جس کا آپ کو پتہ ہو کہ دا اسٹرکچر از اسٹیبل، اور آپ کلائنٹس کو قابل ہے کہ کسی فلڈ کو یا کسی ایسی آفت کو برداشت کر سکے. ڈیزاسٹر ہے، جو ایکسیڈنٹل لوڈز ہم اسٹرکچرل انجینئرز کہتے ہوتے ہیں، ارتھ کوئک لوڈنگ، ونڈ لوڈنگ، وہ برداشت کر سکے. تو آئی گاٹ ٹورڈز اسٹرکچرل انجینئرنگ، اور بعد میں جب میں نے اپنی فرم شروع کی تو آئی اسٹارٹیڈ ایگزیکیوٹنگ ہاؤسز فار پیپل. ہمارے پاس لوگ ڈرائنگز لے کے آتے تھے اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ جو آرکیٹیکچر ڈیزائن ہے دیٹ ڈز ناٹ گو ود دا اسٹرکچر ڈیزائن. اینڈ دین الیکٹریکل جو ڈیزائن ہے پلس پلمنگ کی جو ڈیٹیلز ہیں دیٹ ڈو ناٹ گو ود دا ڈیزائن. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ جی آپ انٹیریئر ڈیزائن کرا لیں اپنے گھر کا، کہ آپ کا جب گھر کمپلیٹ ہو جائے تو ہاؤ دا ہاؤس از گوئنگ ٹو اپیئر. ٹھیک ہے. آپ کی ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں نہیں ہوتی. سر یو ور ٹیلنگ کہ آپ کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے اس طرف آیا کہ آپ نے اپنی فرم بنائی؟ بیسکلی جب یہ اسٹرکچر فیلئر کچھ ہوئے اور فیلڈ میں تھوڑا سا کام کیا تو لوگوں کی ڈرائنگز ہم نے دیکھی کہ پرابلمس ہیں. تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو فارم اے کمپنی جس میں ہم آرکیٹیکچر، اسٹرکچر، الیکٹریکل پلمنگ پلس انٹیریئر ڈیزائننگ اینڈ دین آنورڈ ایگزیکیوشن ہم کر سکیں، تاکہ کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس ہم لے لیں، کلائنٹس کے مطابق ہم ان کو آرکیٹیکچر ڈیزائن کر کے دیں، پھر 3Ds بنا کے دیں، اور اکارڈنگلی اسٹرکچر ڈیزائن اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے. اور بینگ اے اسٹرکچر انجینئر مائی رول از کہ دا اسٹرکچر شوڈ بی اسٹیبل اینڈ اکنامیکل. ابھی فیلڈ میں ہوتا کیا ہے، ابھی دیر آر ہاؤسنگ سوسائٹیز ان پنڈی اسلام آباد، وٹ دے ڈو از کہ جی سریا ڈال دیں. تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اسٹرکچر کو تو اسٹیبل کر لیا اکارڈنگ ٹو یو، حالانکہ کوڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سریا بھی آپ نے ایک حد تک ڈالنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جی وہ کالمس کو آپ ری انفورسمنٹ سے ہی آپ بھر دیں. تو مین جو اسٹرکچر انجینئر کا رول آتا ہے دیٹ از اکانومی اینڈ اسٹیبلٹی آف دا اسٹرکچر. جی. کہ جو ورکنگ لائف ہے آف دا بلڈنگ آف دا اسٹرکچر وہ آپ سکون سے آپ گزار سکیں.
ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्ट इज़ डूइंग एवरीथिंग बट स्ट्रक्चरल इंजीनियर को लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जब घर में क्रैक्स आते हैं फिर वो हमें याद आता किया है। जाता है कि जी आपका जो आप आएं। काम है वो स्क्रीन पे चल भी रहा है, आप देख भी सकते हैं कि किस किस्म का म्यारी काम जो है वो यासीन साहब और उनकी जो फर्म है वो करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। फिर जब जलजिला आता है, जिस तरह अभी जो है वो फ्लड्स आने लग गए, जलजिला आने लग गए, पहले पिंडी इस्लामाबाद में उस तरह से नहीं आता था फ्लड जिस तरह से अब इस दफ़ा आया है, और अब आगे जा जा के ये जो डिज़ास्टर्स हैं ये ज़्यादा होते जाएंगे। इसमें मुझे बताएं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो किस तरह एक घर को जो है मजबूत बना सकता है कि वो घर किसी भी नागहानी आफत को सस्टेन कर सके उसमें। मैम, पाकिस्तान में बेसिकली बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान एक एप्लीकेबल है जी। और वो बेसिकली हम कॉपी कर रहे हैं इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को, हमारे पास कोड्स बेसिकली बने हुए हैं। तो बेस्ड ऑन साइज्मिक जोनिंग ऑफ पाकिस्तान व्हाट वी डू इज़ के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि एक घर है तो घर को हमने इकोनॉमिकल बनाने के लिए जो एक ट्रेंड हमारा चलता आ रहा है दैट इज़ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, कि हम वॉल्स पे ही लोड ट्रांसफ़र करते हैं और जो कॉलम्स होते हैं एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वो नॉर्मली स्टिफनर्स होते हैं, दे आर नॉट लोड कैरिंग मेंबर्स। ठीक है। घर में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो मजबूरन जो है एक कॉलम दे देता है या बीम्स दे देता है लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को देखते हुए। ठीक है। तो बात आ जाती है फिर आगे कि वो जो आपको डिज़ाइन मिला हुआ है वो एक एग्जीक्यूशनर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फॉलो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। Very पाकिस्तान true. में होता क्या है कि आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन तो करा लिया, लेकिन जब आप बिल्डर को देते हैं तो वो कहता है जी मैं ये बहुत सरिया cost कम आ कर रही देता है, हूँ जी, हाँ। ये आपका सरिया हम आपको बचा के दे सकते हैं। उसको नहीं पता कि वो स्ट्रक्चरली आपके घर को अनस्टेबल कर रहा है। वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आपको कहते हैं जी ये एक बीम है, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जी 8 सरिये इसमें डाले हुए हैं, मैं इसमें 4 सरिये पा देता हूँ जी, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये जो आप सेविंग कर रहे हैं, आप रीइंफोर्समेंट कम कर रहे हैं, दिस विल कॉस्ट यू इन द फ्यूचर। और ये फिर दुगना तिगना हो क्या आपको जो है वो कॉस्टिंग जाएगी। मुजम्मिल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो मैंने देखा है कि यासीन यूसुफजई साहब जो एक्सपर्ट है स्ट्रक्चर इंजीनियर के, तो मैंने अभी लाइव देखा है इनको। जी जी, तो मेरा एक क्वेश्चन था सर से। जरूर अस्सलाम वालेकुम जरूर। साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये जब हम बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से रॉक फुटिंग होती है, जी 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 इस जी। पे अगर कॉलम आउट हो जाता है तो उसके जो सरिये हमने बांधे होते हैं तो उसका हम दोबारा उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? यानी कि अगर कॉलम है वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे मूव हो गया या गलत बांध दिया स्टील फिक्सिंग वालों ने, सुपरविजन ठीक नहीं है, तो इसको हम फिर कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? इसका करने कोई सोल्यूशन बताइएगा। ठीक हो गया। बहुत अच्छा और टेक्निकल आपने सवाल पूछा है, बड़ी लोगों की इससे जो है वो मदद हो जाएगी। मुजम्मिल, आपने बहुत बेहतरीन किस्म का सवाल पूछा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, जी, मैम, basically- अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर उसका क्या ऑल्टरनेटिव होगा? मैम, पहले तो ये है कि जो हमारी फील्ड में आजकल हो रहा है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को काम अवॉर्ड कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर एक अनपढ़ आदमी है, इज़ अनअवेयर ऑफ द ड्राइंग्स। वो क्या करता है, वो स्टील फिक्सर को ड्राइंग दे देता है कि जी आप मुझे ये स्टील फिक्स करके दें। पहले तो आपकी साइट पे एक एक्सपीरियंस्ड, एक क्वालिफाइड इंजीनियर होना चाहिए जो ड्राइंग्स को इंश्योर करे ऑन ग्राउंड, इम्प्लीमेंट कराए कि ये यहाँ पे था, ये यहीं पे स्ट्रक्चर बनेगा। मेंबर है तो वो उधर ही हो, ना कि एक कॉलम आपने इधर बनाना था वो उधर लग गया। जी, वाई? पहले तो बात यह है कि somebody should be there to understand the drawings। अभी अगर इस तरह का केस हो गया है कि जी आपका कॉलम यहाँ पे होना था वो उधर लग गया है, तो उसके हल हैं। एक तो आप ये है कि जी आप यहाँ पे ड्रिल करें, ठीक है। वो एक बार लेंथ होती है, लैप लेंथ, वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। लेंथ आपने ड्रिल करके बार्स लगानी है एंड देन इट हैज़ टू बी ग्राउटेड विद एपॉक्सी, नॉट विद ऑर्डिनरी ग्राउट कि जी सीमेंट और पानी का आपने मसाला बना दिया और उसको आपने भर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने उसको एपॉक्सी के साथ ग्राउट करना है ताकि वो कॉलम जो है वो इंटैक्ट रहे। ठीक है। हाँ, जो उसकी स्प्लाइस लेंथ है, बेसिकली बार जो आती है इट कम्स लाइक दिस, ठीक ठीक है, वो इफ़ेक्ट जो है वो जनरेट नहीं होगा। हाँ,
अगर आप ये epoxy नहीं करना चाहते, आपके पास इतना टाइम है, आपके पास वही बात है कि अंडरस्टैंडिंग है, तो व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप डिसमेंटलिंग करके उस पैच को आप स्प्लाइस लेंथ वगैरह जो है वो दोबारा आप से पूरी कर लें, provide दोबारा करें। से बना लें अगर हो अगर सकता वो है। नहीं कर सकते, जैसे घरों में होता है कि जी पिकअप कॉलम के एक कॉलम आ रहा है ग्राउंड पे है, लेकिन फर्स्ट पे किसी और लोकेशन पे आपने कॉलम देना है। जी अभी स्लैब जब लग रही है तो आपको चाहिए कि बार्स आप पहले से ही प्लेस कर दें वहाँ ठीक पे। है। अगर वो आपसे नहीं हुआ तो देन यू हैव टू ड्रिल पर्टिकुलर लोकेशंस ठीक जहाँ है। पे बार लगनी है, और एपॉक्सी ग्राउट के साथ आपने उसको कवर कर देना है। ठीक है, ठीक है। like अच्छा मुझे बताएं कि एक तो ये कि जब क्लाइंट आता है तो एट टाइम्स क्या होता है कि वो आर्किटेक्ट से होकर अपना डिज़ाइन लेकर आपके पास आया हुआ होता है। समटाइम्स क्या होता है कि वो आर्किटेक्ट को ही कहता है कि आप ये पास करा दें मुझे। हाँ। फॉर सपोज हम बड़ी बड़ी अगर सोसाइटीज़ के नाम ना लें तो आप भी समझ गए होंगे, मुझे भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की स्टैम्प के बगैर आपको Process आपका नहीं हो घर नहीं बनाने देते। वो बिल्कुल कहते हैं ऐसे कि ही। जी ये उनको पता होना चाहिए। अच्छा अब स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो उसने वो साइड देखी नहीं है, हो सकता है वो फिलिंग वाली साइड हो, बिल्कुल। साइड हो, या हो सकता है कि वो पहाड़ को काट के बनाई जा रहा हो वो घर, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी ऐसे ही है। सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे पहाड़ कट के जो है वो प्लॉटिंग हुई हुई होती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का वो जगह साइट को देखना और उसके बाद उसको स्टैम्प करना। और सेकेंडली ये कि मुझे बताएं कि जब भी कोई नागहानी आफत आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ज़लज़ला हमें फ़ील नहीं होता हमारे घर में, हमारा घर नहीं हिलता। क्या वो घर ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन है जो नहीं हिलता, या वो घर ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन है जो हिलता तो है लेकिन उसको सस्टेन फिर भी कर लेता है? अच्छा मैम, देयर आर टू पार्ट्स जहाँ तक जी, मैं जी, समझता हूँ जी। दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर इंजीनियर का साइट पे जाना। मैम एक प्रोसीजर है कि जब आप घर बनाते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन आपने कर लिया, तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है। जी सॉइल इन्वेस्टिगेशन से आपको डाटा मिल जाता है कि आपके जो सॉइल की कैपेसिटी है वो क्या है, बेरिंग कैपेसिटी वैल्यूज क्या है, नीचे पानी तो नहीं है, ये चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास। अभी जिससे आप क्लाइंट जो है वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, क्लाइंट शुड इंश्योर कि वो जो टीम है उसके कोई बैक रिकॉर्ड में कोई फेलियर्स वगैरह तो नहीं हुए। आया कि वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल्स फिजिकली वो कलेक्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। फिजिकली कलेक्ट कर रहा है तो वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आजकल लोग क्या करते हैं कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए मशीन भेज दी, अगले दिन आपको वो रिपोर्ट दे देते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। द सैंपल्स कलेक्टेड टेस्ट होंगे लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री से एक प्रॉपर रिपोर्ट फिर बनती है, आपको वो रिपोर्ट दी जाती है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की। ठीक है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो यू आर सेफ। ठीक है। लेकिन ठीक है। अगर आप एजम्पशंस पे हैं, जैसे कि बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कहते हैं कि जी आप एज्यूम कर लें कि 1 टन पर स्क्वायर फुट जो है वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी आप एज्यूम कर लें। मैं कहता हूँ नहीं, ब्रिंग मी अ सॉइल रिपोर्ट, ब्रिंग मी अ सॉइल रिपोर्ट, कि मुझे पता चले कि आपकी सॉइल कंडीशंस क्या हैं, कि कल को आपके घर में प्रॉब्लम्स ना हो, क्रैक्स आएंगे, सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट की भी फिर टाइप्स हैं, एक जगह पे थोड़ी सी सेटलमेंट हो रही है, आगे जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो यू गेट टू सी डायगोनल क्रैकिंग। तो डायगोनल क्रैकिंग इज़ बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट। तो अव्वल तो ये है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अच्छा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है और ही हैज़ टू स्टैम्प द ड्राइंग्स। और करंटली एज पर जो रूल्स हैं सोसाइटीज़ के, वो कहते हैं कि जी स्ट्रक्चरल इंजीनियर शुड आल्सो विजिट द साइट, वो देखे कि साइट पे उसकी ड्राइंग्स के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब आपको श्योरिटी मिलती है कि ड्राइंग्स के मुताबिक काम हो रहा है और घर जो है वो सेफ़ है। ठीक है। अभी दूसरा हिस्सा था आपके क्वेश्चन का कि घर कुछ हिलते हैं कुछ नहीं हिलते। देखें जो स्केल है अर्थक्वेक की, घर हिलते हैं, जी इट इज़ ऑलवेज देयर। अभी स्ट्रक्चर जो मेंबर्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर। आप अगर जापान का देखें तो क्या होता है कि जब ज़लज़ला होता है तो Flexible है उनके बिल्डिंग मूव्स structure। लाइक जी, दिस, ठीक है। जी। वो एक स्वे, एलॉयबल स्वे इज़ देयर कि जी आप बिल्डिंग को अलाउ करते हैं कि वो स्वे करे। अगर आप उसको अलाउ नहीं करते तो क्रैक्स आएंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर इंजीनियर जब हम डिज़ाइन करते हैं, हम स्ट्रक्चर को एक परमिसिबल लिमिट में अलाउ करते हैं कि वो इन रिस्पॉन्स टू द अर्थक्वेक या एक्सीडेंटल लोडिंग इट शुड स्वे। ठीक है। थोड़ी सी मूवमेंट होनी चाहिए। अगर वो मूवमेंट ना हो तो फिर यू विल सी क्रैकिंग।
नहीं, लेकिन कुछ लोगों के घर यासीन साहब ऐसे होते हैं जैसे सिंगल स्टोरी घर है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, तो वो कहते हैं कि जी हमें पता नहीं लगा। उनके बिल्कुल जो साथ वाला घर होगा वो डबल स्टोरी होगा, वो कहेंगे हमें बहुत पता लगा है। उसकी क्या मैं उसका भी रीजन बताता हूँ आपको। देखें, एज यू गो अप, ठीक है, जो स्वे कंटेंट है, जो इसकी लिमिट है, सपोज 1 स्टोरी है, उसकी स्वे की जो लिमिट है अलाउएबल वो कम है। ठीक है, एज यू गो अप द स्वे इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, तो मूवमेंट जो है इट इज़ देयर इन ऑल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। हाँ, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो इस तरह की हो सकती है कि जी आपको फील ना हो, आपके घर में कोई बर्तन ना हिलें। हाँ, ज़लज़ले ऐसे भी होते हैं कि जी अगर आप ज़रा थोड़ा सा अर्थक्वेक से पढ़ें तो उसमें ऐसे भी अर्थक्वेक्स हैं जो आगे आप यानी एंड वाले जो ख़तरनाक वाले जो थोड़े से अर्थक्वेक हैं, अल्लाह बचाए, अल्लाह। वो बेसिकली इस तरह के अर्थक्वेक्स भी आने हैं क़यामत के करीब आसपास, के दरख्त जो हैं वो ज़मीन से निकलेंगे। जी, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज़ हैं जो हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि कुछ अर्थक्वेक्स हैं जो आपको नॉर्मल हालात में फ़ील नहीं होते, फिर कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे होते हैं एज सून एज द इंटेंसिटी इंक्रीज़ तो आपको फ़ील होता है कि जी हाँ ज़लज़ला आया है। फिर कुछ होता है कि जी बर्तन हिलने लगते हैं, बिल्डिंग हिलती है, तो देयर आर इंटेंसिटीज़। हाँ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रीइंफोर्समेंट या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इट इज़ ठीक नॉट है। लाइक। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन से घरों में जो है वो ज़रूरत पड़ती है रिटेनिंग वॉल की? ओके, कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें ये होता है कि जी रिटेनिंग वॉल यहाँ पे बनानी ज़रूरी है, अगर ना बनाई तो फिलिंग तो आप कर देंगे लेकिन बाद में आपको मसले होंगे। वेरी गुड और- क्वेश्चन, Thank इट्स अ you so वेरी much। गुड और क्वेश्चन। कौन से वो घर होते हैं जहाँ पे पाइलिंग की ज़रूरत होती है? वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें इन दोनों चीज़ों की ठीक हो ज़रूरत गया। है। मैम, पहले तो रिटेनिंग वॉल्स का आपने जिक्र जी। किया। अभी आप एक घर बना रही हैं वेयर यू हैव अ बेसमेंट, ठीक है, आपकी बेसमेंट है और बेसमेंट इस तरह है कि दिस साइड इज़ फ्री, इट हैज़ नो अर्थ फिल, और दूसरी साइड पे जो है वो फिल है। ठीक है, तो जब आपकी फिल जो है वो अगर 3 फुट से ज़्यादा हो जाती है तो यू शुड कन्वर्ट दिस वॉल इनटू अ रिटेनिंग वॉल। अगर है। एक साइड पे फिल है, अर्थ फिल, अच्छा। और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, अगर खाली दोनों जगह है तरफ जहाँ पे बेसमेंट बन हाँ, सकता है। ठीक है, जब दोनों तरफ वॉल की दोनों साइड्स पे फिलिंग है, मट्टी है, तो फिर आपको रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत नहीं है। सही है, लेकिन एक साइड पे मट्टी है, दूसरी तरफ इट्स फ्री, है। आपका बेसमेंट बना हुआ है, ओपन गैलरी है आप कह लें, ठीक है, तो यू शुड बी हैविंग अ रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, ठीक हो गया, दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू पाइलिंग, मैंने जो पहले अर्ज़ की कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जी। प्लेज अ मेजर रोल इन कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सॉइल इन्वेस्टिगेशन पे आपको पता चल जाता है कि सॉइल की स्टेट क्या है, सॉइल वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है। ठीक है, उससे आपकी ना फाउंडेशन की बेसिकली डिज़ाइनिंग होती है। अभी देयर आर सोसाइटीज़ इन पिंडी, इस्लामाबाद या एल्सवेयर जहाँ पे फिलिंग होती है, जी, लेकिन प्लॉट बेचने के चक्कर में वो बता देते हैं क्लाइंट को कि जी ये फिलिंग नहीं है, इट्स ओके, आप ले लें। क्लाइंट मेरी तरह का आदमी वो चला जाता है, वो प्लॉट ले लेता है। बाद में जब सॉइल इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि जी ये तो कोई 60 फीट फिलिंग है या 30 फुट। देयर आर प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है जी, फिलिंग है। तो अभी इन ऑर्डर टू हैव अ सेफ डिज़ाइन, आप सपोज एक प्रॉपर्टी वाला है, वो घर बना के या बिज़नेस के लिए वो बना के सेल करना चाह रहे हैं। अभी अगर वो ये करते हैं कि सॉइल कंडीशंस को वो केटर नहीं करते, यानी वो पाइलिंग नहीं देते, जब फिलिंग है 30 फीट फिलिंग है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद पाइलिंग, आपने पाइल्स करनी ही करनी है। नहीं करते तो वो घर जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही क्रैक हो जाएगा, ठीक है, वो क्रैक हो जाएगा और फेल हो जाएगा। आई नो पीपल, पिंडी में अभी आई वोंट नेम पीपल, बट आई वाज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट इन पिंडी, और उसका हुआ ये कि हमारे साथ ना एक कंपनी ने 2 घर ग्रे स्ट्रक्चर उनके कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें पाइलिंग थी, ठीक है, और पाइलिंग वाज 40 फीट डीप एक पाइप, जी, एंड वी वर हैविंग अबाउट 43 पाइल्स, जहाँ तक मुझे याद है। किनाल का प्रोजेक्ट था, और उस टाइम जो पाइलिंग का सिर्फ खर्चा ऐड हुआ था दैट वाज अराउंड 4.3-4.4 मिलियन। ठीक है, ठीक है, कि आप सिर्फ फुटिंग लेवल पे जब आप आ रहे हैं तो जहाँ से आपने आपने पाइलिंग बनाना करके, शुरू कर रहे हैं हाँ जी, घर, वहाँ मतलब तक आप कि सिर्फ आपके- सॉइल को स्टेबलाइज कर रहे हैं, घर इतना पैसा स्टेबल हो लगे, जाए कि बिल्कुल। क्रैकिंग वगैरह ना हो, फेलियर ना हो। तो हमारे साथ जो टीम साथ में काम कर रही थी, ग्रे स्ट्रक्चर उनके कंप्लीटेड थे। वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज के मैंने उनकी एक पोर्च देखी और पोर्च वाज सैगिंग,
पोर्च की काफ़ी जो बड़ी स्लैब थी उसमें एक ऐसे करके सैग बना हुआ था। तो मैंने अपने इंजीनियर से कहा कि डू यू सी दैट सैग, या मुझे लग रहा है? कहता है सर सैग है। अच्छा, हम करीब गए, धंसी हुई थी वो जगह जी अंदर। हम जब करीब गए तो उस घर में बड़े बड़े फिशर्स क्रैक्स क्रॉस में जा रहे थे। मैंने पूछा कि जी पाइलिंग आपने की है? कहते हैं जी की है। मैंने कहा यार ये फिर कैसे हो सकता है? अच्छा, कहते हैं सर हमने ड्राइंग्स के मुताबिक किया, स्ट्रक्चर ये वो सारा हमने किया हुआ है। मुझे अपना इंजीनियर कहता है कि सर ये टीम जो है वो साथ वाला घर भी ये कर रहे हैं। मैंने कहा चलो यार वो भी जाके देखते हैं। अच्छा, जब हम गए तो वहाँ पे रिपेयर के काम चल रहे थे, और रिपेयर के काम हमने देखा कि हो क्या रहा है, वो भी सारे क्रैक्स थे। तो इन ऑर्डर टू सेव मनी आप ये कह लें कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ, उसमें क्लाइंट शिफ्ट भी हुआ है, और द प्रोजेक्ट दैट आई एम रेफरिंग टू, 2 प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, वो अभी भी कोई 3 साल हो गए हैं, अभी भी रिपेयर्स वगैरह हो रहे हैं, और जो क्लाइंट्स हैं अभी तक मूव नहीं हुए। अल्लाह करे वो मूव भी ना हो, वो कहीं और मूव हो जाए, ताकि इन लोगों को समझ लग जाए कि हमने क्या किया, और फिर उसके बाद वो एक उससे इबरत भी हासिल करें। हर फील्ड के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। मेरी हमेशा जो है वो ये कोशिश होती है कि डिसएडवांटेजेस के हवाले से भी हम बात करें, ताकि स्क्रीन के उधर जो भी लोग बैठे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये पता लगे कि हर कामयाबी के साथ एक डिफरेंट किस्म की हार्डशिप भी जो है वो आती है, जिसको आपको फेस करना होता है, बड़े अच्छे तरीके से आपको फेस करना होता है। यासीन साहब, आपकी फील्ड में एक तो ह्यूमन इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भी हैं, लोगों को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ये समझते हैं कि यार ये करना बड़ा मुश्किल है, और ये शायद किसी और फील्ड में ना होता हो, लेकिन हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं कि हमें उनके साथ इस तरह डीलिंग करनी पड़ती है? मैम बेसिकली जब लोग आते हैं, जो हमारी शुरू में एक डिस्कशन हो रही थी कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, जब वो काम आपको अवॉर्ड कर रहे होते हैं, उन्होंने पूरा एक होमवर्क किया होता है कि जी ये प्रोजेक्ट इतने में एग्जीक्यूट होगा, और उस वक्त जो है वो अपनी टर्म्स आपको डिक्टेट कर रहे होते हैं, या आपकी भी वो समझ रहे होते हैं, ले रहे होते हैं कि जी हम इस पे चलेंगे। तो व्हाट वी डू इज़ कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट पेश करते हैं, और हम गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि सर आपके स्कोप में आपकी ये स्टेजेस हैं, इन पे आपने हमें पेमेंट्स करनी है, ये एक शेड्यूल है, इस ड्यूरेशन में हम आपको प्रोजेक्ट करके देंगे, और ये स्कोप ऑफ वर्क में इंक्लूडेड होगा। व्हाट पीपल डू इज़ कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अभी अगर मैं पेमेंट्स की बात करता हूँ क्लाइंट्स की तरफ से, तो टिल द टाइम द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड वो आपको पेमेंट्स में लेके चल रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जी हमने प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो पेमेंट आती है तो फिर हम आपको पे करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तो मैं एक लिखता होता हूँ क्लॉज कि द क्लाइंट इज़ अवेलेबल विद सफिशेंट फंड्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बिल्कुल, क्या आपके पास अवेलेबल है, और हम फैसिलिटेट भी करते हैं। चलें, अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, वी विल वेट फॉर लाइक 15-20 डेज़ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्लाइंट को चाहिए कि वो ना कराए, क्योंकि आपने भी आगे बहुत सारे लोगों पेमेंट्स को करनी है उसके हमने। अंदर पेमेंट्स में करने हैं। और तकलीफ उस वक्त होती है कि आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, आपने बेस्ड ऑन सम टर्म्स प्रोजेक्ट किया है, क्लाइंट कंप्लीशन के बाद आपको कहता है कि जी ये तो आपका हक नहीं बनता, ये आपकी सेविंग है, विच इज़ रॉन्ग, विच शुड नॉट हैपन। आई बिलीव के लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट शुड बी ऑनर्ड ऑन बोथ साइड्स, कि जी एक एग्जीक्यूशनर है, डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइन करके जी वो एग्जीक्यूट आपको करके दे रहा है, आपको वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा फिर तो आप पेमेंट रोक लें, लेकिन अगर उसने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, फिर एट द एंड यू से नो आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, विच इज़ रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान इंजन काउंसिल है, आपके कोर्ट्स हैं, लेकिन बात उधर ही आ जाती है कि स्लो सिस्टम है, और जब आपकी फंड्स इस तरह रुक जाएं तो एक कंपनी जो है वो हॉल्ट हो जाती है। तो सिस्टम शुड बी डिवाइस्ड कि जी ये ज़रा देखा जाए, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने कि जो हमारा कॉल है और फेल है, अमर है, वो हम फॉलो करें, बिल्कुल, ना बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। हम कहें लेकिन ऑन ग्राउंड हमने करना नहीं है।
अच्छा, एक बहुत चीज़ जो आपकी फील्ड के अंदर लोग कहते हैं, मेरा भी क्योंकि इस फील्ड से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, कि ख़वातीन जो हैं वो प्रोसेस को स्लो कर देती है। जो कंस्ट्रक्शन जल्दी हो सकती है, जो मुमकिन हो सकती है, क्योंकि वो अपने जो भी माइंड में उनके होता है चीज़, वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती, और जो एग्जीक्यूट हो जाता है वो कहती हैं ये तो मैंने नहीं सोचा था, मैंने तो कुछ और सोचा हुआ था, या अपने इरादे को कभी कभी बदल भी लेती है। तो ख़वातीन के साथ आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस वाकई रहा है कि उनके साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मैन इस फील्ड में? हाँ, इट इज़ ट्रू। बेसिकली मैं समझता हूँ, बल्कि अपने क्लाइंट्स को हम रिकमेंड भी करते होते हैं कि जी आप लेआउट प्लान्स जब आप करा रहे हैं, लैंड यूटिलिटी प्लान आप बना रहे हैं, तो यू शुड टेक सम टाइम। सपोज़ वॉशरूम है, आप उसको अपने घर में ज़रा ड्रॉ करके देखें कि ये वॉशरूम का साइज़ क्या बन रहा है जी, ठीक है। ऑन ग्राउंड भी जब आपका वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो दैट इज़ नॉट द टाइम कि जी आप चेंजेस शुरू कर दें। अभी हमारे साथ ऐसे भी हुआ है कि हमने जी सपोज़ बेसमेंट की सारी वॉल्स हमने लगा दी हैं आपकी ड्राइंग्स के मुताबिक, ठीक है, जो आपने अप्रूव किया, आपने फाइनल किया। यस, आप विज़िट भी करते हैं, आप घर देखते भी हैं, उस वक्त आपको ठीक लगता है कि यार ऑल इज़ ओके एज़ पर ड्राइंग्स। लेकिन जब फिनिशिंग शुरू होती है, टाइल्स लगना शुरू होती हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो ऐसे नहीं सोचा था ये तो बहुत छोटा हो गया है, ठीक हो, कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, आइडियाज़ की अगर बात की जाए, व्हाट आई रिकमेंड टू माय पीपल इज़ के आप डिज़ाइनिंग कराएं, आप 3Ds पे जाएं, आप उसकी वीडियोस बनवाएं, एनिमेटेड वीडियोस बनवाएं, आजकल ताकि आपको पता लगे कि असल में क्या बनेगा, हाउ ये द हाउस इज़ गोइंग टू अपीयर, उसकी स्पेस क्या होगी, यूटिलिटी क्या होगी, आपने कहाँ से आना है, लाइट्स वगैरह का क्या होगा, नेचुरल लाइटिंग है नहीं है, वेंटिलेशन है नहीं है, थोड़ा सा आप डिज़ाइन कराएं। ये लेआउट प्लान्स जो हैं ये समझना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने अब रिसेंटली बनाना शुरू कर दिए प्लेटफॉर्म्स, ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ के 3 सीढ़ियाँ चढ़ के ये चीज़ आएगी, फिर 3 सीढ़ियाँ उतर के ये चीज़ आएगी, फिर यहाँ जाएंगे तो ये होगा। मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है बिकॉज शायद मेरी अम्मी जो हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स वगैरह नहीं चढ़ सकती, तो मैं जब भी इस तरह का कोई घर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं होंगे, उनको कितनी मुश्किल होगी कि हर जगह जाने के लिए 2-3 स्टेप्स चढ़ने, 2-3 स्टेप्स उतरने। तो आप क्या उनको समझाते हैं कि ये चीज़ जो है ये देखने में एस्थेटिकली तो बहुत अच्छी लग रही है ये, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है? हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं विद वेरियस रिक्वायरमेंट्स, बल्कि आजकल पिंटरेस्ट से, यूट्यूब से आइडियाज़ लेके कि जी हमें ये चाहिए। हम पूछते हैं कि जी एजेस, आपके जो घर में अफराद हैं, लोग जो रह रहे हैं, उनकी एजेस क्या है, क्योंकि जो स्टेप्स हैं, सपोज़ घर में ही आपने स्टेप दिए हुए हैं, आप सपोज़ अ पर्सन फॉल्स इनटू द वॉशरूम, ठीक है जी, आपको चलने फिरने में तकलीफ़ होगी, अगर आपके घर में स्टेप्स हैं तो हार्ड होगा आपके लिए वो मैनूवर करना। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स तो आती हैं, हाँ हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं कि जी आप ये करवा तो रहे हैं लेकिन इसकी रिपरकशंस ये होंगी। मेन डिसीजन जो है वो क्लाइंट का ही है अल्टीमेटली, कि जी नहीं हमें ये चाहिए, हमें चाहिए जी। बाहर वो हम गए थे, फलां मुल्क गए थे, उधर हमने ये देखा, बड़ा अच्छा लगा, हम ये करना चाह रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि जी बाहर और हमारे में थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ, आपने एक होटल में स्टे किया, दैट इज़ अ होटल, दैट्स नॉट अ होम, ठीक है। आप होटल पे जाते हैं, हफ्ता गुजारते हैं, 10 दिन गुजारते हैं, आप वापस आ जाते हैं। घर वो जगह है जहाँ पे आपने रहना होता है, गर्मी सर्दी रहना है, आपने हेल्थ के जो हैं आजकल किसी को कुछ नहीं पता, कोई गिर पड़ता है, देन यू आर नॉट एबल टू। और घर कोई 5 साल के लिए तो है नहीं कि आप बना लें, उम्र के लिए आपने वहीं गुजारनी है। एक्साइटिंग आज का हमारा जो है पूरा टॉपिक रहा है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है, तो यकीनी तौर पे आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। 2 मेरे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है तो इसलिए आपने जल्दी जल्दी बताना है। पहला तो ये कि रिसेंटली आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म किया जो कि बहुत ही कम अरसे में किया, एक स्कूल की बिल्डिंग आपने तामीर की जो तकरीबन 5 कनाल 6 कनाल के ऊपर उसका कवर्ड एरिया है, और आपने 6 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को कर लिया। तो कैसे किया आपने उस प्रोजेक्ट को? क्या ये मुमकिन है कि इतनी जल्दी कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो पाए तक मील तक पहुंच जाए? बिल्कुल। अच्छा मैम, ये प्रोजेक्ट हमें बेसिकली मिला था, तो हमें इनिशियली ड्यूरेशन बताई गई थी कि 8 मंथ्स में आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है। इट इज़ एट डेरिया हसनाबाद, रावलपिंडी। ये जो कि अभी स्क्रीन पे चल भी रहा है।
اس کا کورڈ ایریا ہے 23,000 اسکوائر فیٹ ود اے پلاٹ سائز آف 2 کنال 10 مرلہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شروع میں 8 مہینے تھے. جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تو ہمیں کہا گیا یار رمضان میں یعنی آپ کے پاس 27 ڈیز ہیں, آپ نے ہمیں 3 سلیبس کر کے دینی ہے, 3 چھتیں آپ نے کنفرم ڈال دینی ہے. ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ایک پلان اپنا کیا کہ اگر ہم کر لیتے ہیں سلیبس کر لیتے ہیں تو ہم ساتھ میں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نے پلاننگ اس طرح کی کہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز ایک ٹائم پہ ہی. مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, ایک لینٹر سوکھنے میں ہی 15 دن لگتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں پھر اسٹرکچر انجینئرنگ آ جاتی ہے. ہاں جی. کہ آپ ایڈمسٹرز آپ ڈالتے ہیں, سپر پلاسٹیسائزرز آپ یوز کر سکتے ہیں. اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کانکریٹ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ارلی اسٹرینتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ آپ شٹرنگ جو ہے وہ ڈبل یوز کر لیں یا تینوں کی آپ الگ الگ یوز کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم نے اس طرح کی پلاننگ کی کہ اسپیڈ میں کوالٹی کا کام جو ہے وہ ڈیلیور ہو سکے. ٹھیک ہے. ملٹیپل ایکٹیویٹیز سائملٹینیس کام جو ہیں وہ ہو رہے تھے. گراؤنڈ فلور پہ سپوز بریک ورک ہو رہی ہے, اوپر جو ہے وہ چھت ہو رہی ہے. اچھا چھت ہو گئی ہے تو ساتھ میں اس کی بھی بریک ورک ہو رہی ہے. پھر ہم الیکٹریکل اور پلمبنگ کا کام کر رہے ہیں, ٹائلنگ کا کام کر رہے ہیں, فال سیلنگ کا کام کر رہے ہیں. تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایک آپریشن تھا اور الحمدللہ وی ور ایبل ٹو ڈیلیور اٹ. بہترین. یہ تو میرے خیال سے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ میجک جو ہے وہ جنوں سے میرے خیال سے آپ نے یہ کام کرا ہے جو اتنی جلدی ہو گیا. ہمارے ساتھ مظہر صاحب ہیں جی مظفر آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک الحمدللہ. مظہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا سر سے یہ سوال ہے کہ سر کچھ اسپیسیفک سوسائٹیز میں کام کر رہے ہیں یا سوسائٹی سے باہر بھی کر رہے ہیں لائک مظفر آباد یا ہلی ایریاز میں؟ اور دوسرا سر سے میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی ہم جب لوکل کانٹریکٹر سے ریٹ لیتے ہیں نا ان کے ریٹ کمپنیز کے ریٹ سے کم ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کم ریٹ چھوڑ کے کمپنیز کی طرف جائیں اور ہائی ریٹ پہ کام کروائیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا چلیں وہ تو جواب دیں گے, میں بھی آپ کو ایک جواب دے دیتی ہوں. میرے فادر ان لا ہمیشہ بات کہتے ہیں کہ منزل پہ آپ کو مہران بھی پہنچا دے گی اور مرسیڈیز بھی پہنچا دے گی. یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ منزل پہ آپ نے کس کمفرٹ میں پہنچنا ہے, ورنہ منزل پہ تو جو ہے وہ کہیں پہ کوئی بھی چیز جو ہے نا سائیکل میں پہنچا دیتی ہے, لیکن کمفرٹ آپ نے طے کرنا ہے. لیکن ایسے بھی اس کا جواب لیں گے. مظہر صاحب کے سوال کا وہ کانٹریکٹر کو چھوڑ کے کیوں آیا آپ کے پاس؟ اچھا ایک ان کا تھا کہ آپ کن ایریاز میں مظفر آباد کی انہوں نے بات کی. میم میں یہ چاہوں گا بتانا کہ ہم نے جب اپنی فرم سٹارٹ کی تھی تو وی اسٹارٹڈ فرام وانا ساؤتھ وزیرستان. وی ہیو ورکڈ ان باجوڑ, اورگزئی ایجنسی, ہارڈ ایریاز میں ہم کام کرتے رہے ہیں. تو کرنٹلی ایون ناؤ ڈی جی خان, راجن پور, لیا, ڈی آئی خان, ٹھیک ہے. پھر ہارڈ ایریاز میں تو کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, آپ وہاں کیوں جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے؟ بس وہ سٹارٹ تھا میرا, وہ سٹارٹ تھا. اور باقی اگر کلائنٹس اگر سروسز ریکوائرڈ ہیں تو وی آر ولنگ ٹو ورک اینی ویئر. ٹھیک ہے, ان پاکستان. ہاں اینی ویئر. اور دوسرا جو ان کا سوال تھا, انشاءاللہ نہیں ہوں گے. دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کانٹریکٹر کو چھوڑ کے جبکہ اس کی ریٹس کم ہے تو آپ کے پاس کیوں آئے ہو؟ اصل میں ہوتا ہے کہ ایک بلکہ کال ہے کہ جی مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. ہمارا یہ ہے کہ ہم بیسیکلی پہلے تو آپ کو آرکیٹیکچر, اسٹرکچر, الیکٹریکل, پلمبنگ ڈیزائنز ہم آپ کو دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارا سٹاف جو ہے, ایک انجینئر سپوز ایک کنال کا گھر بن رہا ہے تو ہی ول بی پریزنٹ ایٹ سائٹ آل دا ٹائمس. ہاں رات کو اس کی چھٹی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ فرائیڈیز آف. ریسٹ ہی ول بی ایٹ دا سائٹ اور سپروائزڈ کام ہوگا. دین وی ہیو اے ٹیم آف انجینئرز, پروجیکٹ مینیجر ہیں ہمارے, اور پرسنلی میں خود وزٹس کرتا ہوں ان اناؤنسڈ آن مائی سائٹس کہ جی مجھے کسی کنسلٹنٹ کی, اگر کوئی کلائنٹ رکھتا ہے کنسلٹنٹ تو دے آر ویلکم. لیکن ہمارا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے, جو ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹ فائنل کریں گے اسی کے مطابق ہم آپ کو کام ایگزیکیوٹ کر کے دیں گے. نہ کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ میں کہ 60 گریڈ اسٹیل لگائیں گے اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ نمبر ہی اس کا کوئی نہ ہو.